Namaste, everyone. A very good morning and welcome to Small Wonders Playdate 24. Wow, I'm so happy. 24 weeks we've been doing playdates for you all children. And believe me, each playdate we've enjoyed a lot because the kind of support that you've given us, the kind of encouragement and enthusiasm that you've spread is tremendous. So thank you so much, children. Thank you so much, parents. And today, the theme for our Playdate celebration is, of course, kite flying, of course, Uttarayan. So, let me read out what is the plan for today. It is first we start the Playdate every time with a prayer and then a welcome song. So, I will request when the welcome song is played, please dance on the tunes. Then we shall have the poem of the theme, that is Sar 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 Udi Jai Re Patang. So this is a Gujarati song because basically Uttarayan is the festival of Gujarat. So we've selected this Gujarati song, then some exercises to keep you fit. So then I'll be sharing something about Uttarayan. Why do we celebrate Uttarayan? What is the importance of Uttarayan? Then in the craft, we have these beautiful handmade kites. So you will make your own kite, and it's so much of happiness, to fly your own kite in the sky. So Meeta Didi will teach you how to make these beautiful kites. Then Praman will join us for yoga session. And Daksh will come for dance. Yay! Because Uttarayan is a festival of celebration of music, dance, and enthusiasm. Then we have one game by Muskan Didi. Then something about your health, which Disha Didi is going to share with us. And then it'll be the bye-bye song. So let's start our play date 24. Yes, let's go into the classrooms. Good morning, children. Join your hands and close your eyes. Bow down. Wonderful, wonderful. Thank you, teachers. Thank you so much. Now, children, get ready for the welcome song. Wow. So, we are going to play a welcome song and let's all dance on this song because this is one of my favorite welcome songs. So, let's start this welcome song. Hi. Welcome, welcome, how do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in a ring. Hold each other's hands too. Happy, happy, that's how we feel when we are together. Happy, happy, when we are together. Welcome, welcome, how do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in a ring. Hold each other's hands too. Happy, happy, that's how we feel when we are together. Happy, happy, when we are together. Happy, happy, when we are together. Happy, happy, when we are together. Wow, what a lovely song. Happy, happy when we are together. हम जब सब साथ में होते हैं तो सच में हम सब खुश होते हैं. But these times in pandemic हम लोग सब थोड़ा social distancing maintain करते हैं ताकि हम सब स्वस्थ रह सके. So children, I will request you कि आप अपने मम्मी पापा सब मेरे ख्याल से फॉलो करते ही होंगे, बट आई जस्ट रिमाइंड यू कि आप मास्क पहने रखिए, हाथ धोइए, every 1 hour make a schedule in your houses, हर 1 घंटे पे एक बार बेसिन में जाके अच्छे से हैंड्स वॉश कर लीजिए because you've touched so many things. That's a very good habit to do. And second thing is कि भीड़ भड़के वाली जगह पर जाना avoid कीजिए, especially in times of these festivals, so avoid gatherings, stay alone with social distancing at your homes only. So now we have this theme song of Patang Sar 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 Udi Jai. Can we have the song, please?
And everybody with your patang steps, come on, start. आओ मेरे साथ आज हम पतंग उड़ाएंगे चले सर 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 उड़ी पतंग पर उड़ी पतंग सर 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 उड़ी पतंग पर उड़ी पतंग अरे अरे वो काटा सर 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 उड़ी पतंग पर उड़ी पतंग सर 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 उड़ी पतंग पर उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग अरे वो काटा अरे देखो ना अरे कितना मजा आ रहा है ना अरे वो काटा इसको काटा उसको काटा Wow, wonderful. Such a beautiful festival. So we'll be talking about the festival in detail. So let's go to Praman. Praman is now ready with his exercises. So I request जो भी हमें देख रहे हैं, please take up your positions for exercises. These are very simple exercises that you can do anywhere. So kindly take your positions for exercise and let's go back to Praman in the classroom. Praman, are you ready, beta? Yes, ma'am. Perfect. गुड मॉर्निंग। आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हैंड्स को अपनी कमर पे रखिए। फिर पहले हम राइट साइड घूमेंगे 1, अभी वापस फ्रंट साइड 2, लेफ्ट साइड 3, वापस आगे 4। अब हम इसे काउंट करते हैं। वेरी गुड। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए फिर से अपने दोनों हैंड्स को कमर पे रखिए। अब हम हमारी नेक को राउंड राउंड घुमाएंगे। ठीक है, चलो 1 2 3 4 1 2 3 4। वेरी गुड। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को आगे कीजिए। फिर हमारी उंगलियों को पहले ऊपर नीचे हमारे दूसरे हैंड से करेंगे। देख रहे हैं ना प्रमन भैया कैसे कर रहे हैं? ठीक वैसे 1 2 डाउन, यस, अप 1 2 डाउन, वेरी गुड। अब यही हम हमारे राइट हैंड में करेंगे। तो राइट हैंड को आगे कीजिए, अप डाउन, अप डाउन। तो आप सबको आज की तीनों एक्सरसाइज अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी प्रमन, ईशा दीदी, थैंक यू सो मच। एक्सरसाइजेस विंटर्स में तो खास करनी चाहिए, अदरवाइज भी एवरीडे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसीलिए हमने हमारे प्लानर में एक्सरसाइज का एक छोटा सा सेक्शन रखा है, ताकि
आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बचपन से ही ये हैबिट रखें। तो तीनों एक्सरसाइज कितनी सिंपल थी और इसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए आपको। कहीं भी आप घर में खड़े होके यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस, ये सारी जो एक्सरसाइज है, बिकॉज हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हमारा बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाता है, तो थोड़ी मूवमेंट बहुत जरूरी है। अब थोड़ा-सा मैं क्राफ्ट के बारे में बताऊँगी, और उससे पहले जब मीता दीदी क्राफ्ट बताएँगे, उससे पहले हम उत्तरायण के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। तो उत्तरायण किसकी फेस्टिवल है? यू कैन सी दीज़ काइट्स, आप पीछे देख सकते हो काइट्स। उत्तरायण जो है 14th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन सब लोग अपनी टेरेस पे जाते हैं और कलरफुल पतंग्स को है जो वो आसमान में उड़ाते हैं। बट अभी जो टाइम चल रहा है, स्पेसिफिकली ये कोरोना का जो टाइम है, अदरवाइज भी अभी जो है वो उत्तरायण थोड़ा सा चेंज हो चुका है फेस्टिवल का सेलिब्रेशन, बिकॉज बर्ड्स जो है उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम जो वो डोरी से पतंग चढ़ाते हैं वो डोरी बहुत ही कांच वाली होती है, तो बर्ड्स को अगर लग जाए तो उनकी जो गला है या उनका नेक है वो कट हो जाता है, उनके फेदर्स टूट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो अब सारे लोग यही कहते हैं कि पतंग आप चढ़ाइए, बट जो उसकी डोरी है वो इतनी कांच वाली मत लीजिए, ताकि जो बर्ड्स जो फ्लाई हो रहे हैं स्काई में उनको हम इंजर्ड ना करें। ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली इसलिए मनाया जाता है, दिस इज द डे ऑन 14th ऑफ जनवरी। ये वो दिन है जिस दिन विंटर के जाने की शुरुआत होती है और समर के आने की शुरुआत होती है। अभी क्या है, ठंडी, ओ ब्लैंकेट से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मम्मा नहीं ब्लैंकेट में रहने दो, स्वेटर नहीं निकालना है, ये नहीं करना है, सबको ऐसा ही लगता है। तो ये जो 14th ऑफ जनवरी जो डे है, उस दिन सन ऐसे डायरेक्शन में आता है कि विंटर जो है उसके जाने की शुरुआत होती है और समर के आने की। विंटर्स में क्या होता है, डेज बहुत शॉर्ट होते हैं, जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5:30 बजते नहीं है तो घर में लाइट्स हम सब शुरू करने लग जाते हैं, बिकॉज अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। लेकिन समर्स में क्या होता है, 7:30 बजे तक, कभी कभी 7:30 से भी आगे तक फुल लाइट्स रहती है, और रात जो है वो छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। और ये फेस्टिवल खासकर पंजाब साइड जो है इसको लोहरी भी कहा जाता है, बिकॉज इस फेस्टिवल में वो लोग बॉन फायर, जो बीच में सब लोग सर्कल्स में आ जाते हैं और बीच में लकड़ी से वो लोग आग जलाते हैं और डांस करके सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज जो चीजें किसान, जो फार्मर्स है, जो चीजें उन्होंने अपने फार्म्स में लगाई हैं सारी, वो चीजों को अब सन चाहिए ग्रो होने के लिए। जो ग्रेन्स हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या जो भी उन्होंने उगाया है, उसके लिए उनको सन चाहिए। तो अभी जो विंटर है वो जा रहा है, सन जो है वो आ रहा है, तो उसको वेलकम करने के लिए ये पंजाब में लोहरी मनाई जाती है, हमारे गुजरात में इसको उत्तरायण। तो ये उत्तरायण को हम काइट फ्लाइंग डे भी मनाते हैं, और ये खुशी इसलिए है, क्या होता है, विंटर जा रही है और समर आ रही है। तो मैंने जैसे बताया, काइट फेस्टिवल बहुत इंजॉयबल होती है, मजा बहुत आता है फैमिली के साथ। बट इन दिस पेंडेमिक आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब गैदर ना हो, बिकॉज ये फेस्टिवल जो ऐसा ऐसा फेस्टिवल था जिसमें सब लोग इकट्ठा होके हल्ला गुल्ला करके हम लोग टेरेस पे म्यूजिक लगाते थे, डांस करते थे, चिक्कीज खाते थे, लड्डूस खाते थे, शेरडी खाते थे, शुगर केन, सब कुछ हम इंजॉय करते थे। बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हम इस खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बहुत सारे जने इकट्ठा नहीं होंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। दूसरा, मैंने जैसे बताया, एनवायरमेंट, हमारे बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं स्काई में, उनको भी इन इस डोरी से, जो बहुत कांच वाली होती है, उससे नुकसान होता है। तो आप पतंग चगाइए, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, बट डोरी का खास ध्यान रखिए, स्पेशली जो चाइनीज डोरी आती है वो बहुत ही शार्प होती है, तो उस डोरी को सिलेक्ट मत कीजिए और एंजॉय कीजिए, बट थोड़ा बैलेंस करके। बहुत सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा मत कीजिए, टेरेस पे इतने सारे झुंड में मत जाइए, ऐसे रहिए ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। मास्क, प्लीज वेयर मास्क एट ऑल टाइम्स। और अगर आप टेरेस पे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर 1 घंटे में आकर अपने हैंड्स को वॉश करें।
Otherwise also, not only for Uttarayan, but daily make a schedule. You wash your hand at 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 noon, 1 p.m. Every hour, make sure you wash your hands just for 20 seconds. And believe me, हाथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि एकदम मुलायम. और हाथ धोने के बाद please make sure you apply some cream, because this is winter season, तो dry हो जाते हैं हाथ. So this was something about Uttarayan. And there's a beautiful board decoration जो teachers ने किया है. So let's go into the classroom and have a look. Wow! देखिए ये उत्तरायण का पूरा जो सीन है ये किया है. कितनी बड़ी छोटी कितनी टाइप्स की पतंग आती है कि आप बिलीव नहीं करोगे. शेप, साइजेस, कलर्स. और आप देख सकते हो कि बच्चे जो है इस पतंग को उड़ा रहे हैं. दिस ब्यूटीफुल काइट आप देख रहे हो. ये जो मांझा है, ये जिसको मांझा बोलते हैं जनरली, ये फिरकी आप देख रहे हो कि एक फिरकी से पतंग को बांधते हैं और एक जन फिरकी पकड़ता है, दूसरा हवा में पतंग को उड़ाता है. ये जो तिल के लड्डू हैं, ओ यस, ये तो हम भूल ही नहीं सकते, बिकॉज उत्तरायण की स्पेशलिटी है चिक्कीज और तिल के लड्डू. तो ये जरूर से घर पे इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ट्रेडिशन हम जरूर फॉलो करेंगे. बच्चे, बूढ़े, घर के सारे लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं. अगर पापा पतंग चगाते हैं तो मम्मी या हम फिरकी पकड़ते हैं और फिर सारे लोग म्यूजिक पे डांस करते हैं. ये थोड़ा सा सीन हमने लिया है पंजाब. जो लोहरी मैंने आपको बताया था वो 13th जनवरी को मनाया जाता है. शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो ऐसे फायर लगा के पंजाबी कॉस्ट्यूम पहन के ये लोग पंजाबी डांस करते हैं और लोहरी मनाते हैं. बिकॉज विंटर इज गोइंग एंड समर इज कमिंग. और ये लोग सन की राह क्यों देखते हैं? क्योंकि जो सब उन्होंने उगा के रखा है वो बड़ा होगा. उगेगा कैसे? जब उनको सन मिलेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट उत्तरायण. नाउ लेट्स गो इनटू द क्लासरूम जहां पे मीता दीदी, ये सारी काइट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, कलरफुल काइट्स, ये सारी हाथों से बनाई है मीता दीदी ने. आपको भी अपनी काइट बनानी है ना? यस, जरूर से बनाना अपनी काइट, बिकॉज अपनी काइट को उड़ाने का मजा ही कुछ अलग है. तो मीता दीदी आज 2-3 टाइप की काइट्स आपको दिखाएंगे. जरूर से बनाना, पिक्चर्स मुझे भेजना. मैं जो बनाऊंगी वो पिक्चर्स आपको जरूर भेजूंगी. सो लेट्स गो इनटू द क्लासरूम. हेलो, काइट फेस्टिवल आ रहा है और आज स्मॉल वंडर में हम काइट फेस्टिवल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आज मैं आपको क्राफ्ट में पेपर से काइट बनाना सिखाऊंगी. पहले मैंने यहाँ पे 3 ये पतला वाला कलरफुल पेपर लिया है. सेलो टेप, फेविकॉल, स्केल, पेंसिल, सीजर और वुडन स्टिक का हम यूज करेंगे. पहले हम ये A4 साइज के पेपर में हम लोग पहले यहाँ पे मार्क बना देंगे दोनों साइड ऐसे, और मिडल में हम ऐसे प्लांटिंग में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे भी मार्क बना के यहाँ पे प्लांटिंग लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और फिर मिडल में भी ऐसे ही मार्क करके ऐसे ड्रॉ करेंगे काइट को, और फिर यहाँ से हम उसे कट कर लेंगे. फिर येलो पेपर में से मैं यहाँ पे काइट को डेकोरेट करने के लिए इसे फोल्ड करके स्मॉल सर्कल ड्रॉ करूंगी और उसे भी हमें कट कर लेना है. यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्राउन कलर का पेपर लिया है और उसमें हम ये वाले सर्कल से स्मॉल साइज का सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें से भी हम 2 सर्कल कट कर लेंगे. यहाँ पे मैंने सब कुछ कट करके रखा है. ये वाला जो काइट ड्रॉ किया था वो उसमें से जो बचा हुआ कटिंग है उसमें से हम ऐसे स्क्वायर स्मॉल स्मॉल ऐसे स्क्वायर को कट कर लेंगे. येलो पेपर जो है उसमें से ऐसे स्ट्रिप हम कट करेंगे और फिर उसमें से ये वाली 2 कट की है उसे हम ऐसे कटिंग बना के ऐसे काइट को डेकोरेट करने के लिए हम टेल बना लेंगे और उसका हैंड्स भी ऐसे बना देंगे. ओके, यहाँ पे मैंने सब कुछ कट करके रखा है. इसे मैं थोड़ा ज्यादा कट कर लेती हूँ.
क्योंकि काइट की टेल थोड़ी लंबी होती है। अब हम काइट में ऐसे मिडल में ऐसे वुडन स्टिक रख देंगे और जो ये स्मॉल वाला पीस है उसमें हम वैसे फेविकॉल पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे रख के उसे इसे स्टिक कर देंगे ताकि ये निकल ना जाए। फिर यहाँ पे हम दूसरा वाला पीस में हम फेविकॉल पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे भी ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर ये वाली जो स्टिक लंबी है यहाँ पे हम उसे मिडल में रख देंगे और फिर इसे वैसे ही सेम पैटर्न से यहाँ पे भी ऐसे फेविकॉल पेस्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे मेरी ये पेपर ड्राई नहीं हो रहा है इसलिए मैं सेलो टेप का यूज कर रही हूँ। इससे सेलो टेप से साइड में हैंड्स की जगह पे ऐसे स्टिक कर देंगे और दूसरी ओर भी ऐसे ही हम ऐसे स्टिक कर देंगे। और जो यहाँ पे बचा हुआ पेपर है उसे हम ऐसे क्रॉस में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे आइस में मिडल में आइस को ऐसे बना देंगे और फिर यहाँ पे हम ऐसे उसे डेकोरेट कर देंगे। वैसे मैं काइट की ऐसे स्माइली को भी ड्रॉ कर दूंगी और उसे मैं ऐसे कट करके मिडल में ऐसे स्टिक कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं टेल को ऐसे स्टिक कर दूंगी और इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये ड्राई नहीं हो रहा है तो मैं इसे फेविकॉल से इसे सेलो टेप से स्टिक कर दूंगी। इसे मैं ड्राई होने के लिए रख देती। यहाँ पे मैंने दूसरे अलग अलग काइट बना के इसे रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई, दोनों हैंड्स बनाए हैं, ये टेल बनाई है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे मैंने काइट्स बनाई है। आप इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे चेन बनाई है और नीचे टेल की जगह पे पेस्ट कर दिया है। बच्चे जब ये अपने आप बनाते हैं और इसे फ्लाई करने की ट्राई करते हैं तो उसे बहुत मजा आता है।
बच्चे जब ये एक्टिविटी करें तो पेरेंट्स उसकी फोटो और वीडियो बनाएं और स्मॉल वंडर्स फेसबुक पेज पे पोस्ट करें और टैग भी करें। थैंक यू। वंडरफुल मीता दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत कम टाइम में इजीली आपने क्राफ्ट बनाना सिखाया हमको। तो आई एम श्योर कि बच्चे एटलीस्ट अपनी खुद की फेवरेट पतंग, फेवरेट कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। नहीं, मुझे ब्लैक कलर की काइट नहीं चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, मुझे येलो चाहिए, मुझे टेल ऐसी चाहिए, चेन वाली चाहिए, कट वाली चाहिए। तो बहुत अच्छे से आपने सिखाया। अब हम चलते हैं फिर से थोड़ा सा योगा करने के लिए। सो कम ऑन, रोल ऑन योर योगा मैट्स एंड गेट रेडी. Praman is there with us for some yoga poses. Come on, children. Is Praman ready? ओ, अभी तक सब सेटअप हो रहा है। तो तब तक चिल्ड्रन आप भी अपनी योगा मैट्स ढूंढ लीजिए जल्दी से एंड स्प्रेड देम। कौन से कलर की मैट है आपके पास? मेरे पास तो पिंक कलर की मैट है। यस, प्रमन इज रेडी, आई कैन सी। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 3 योगा पोज करेंगे। इजी पोज, ज्ञान मुद्रा पोज एंड स्कूबा डाइवर पोज। तो आप सब जल्दी से अपनी मैट लेकर रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे इजी पोज। इसके लिए पहले आप अपनी मैट पर बैठ जाइए। फिर अपने दोनों लेग्स को एक दूसरे के ऊपर बैलेंस कीजिए। आपसे जितना हो उतना आप बैलेंस कीजिए। अब अपने दोनों हैंड्स को अपने लेग पर रख दीजिए, जैसे प्रमन भैया दिखा रहे हैं। आंखें बंद कर दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। हमारा दूसरा पोज है ज्ञान मुद्रा पोज। इसके लिए आप सब पहले अपनी मैट पर हील्स पर बैठ जाइए। धीरे धीरे, आप सब देख रहे हैं ना प्रमन भैया कैसे कर रहे हैं, ठीक वैसे। फिर अपने दोनों हैंड से आंखों के ऊपर, जैसे हम स्पेक्स का शेप बनाते हैं। हाँ देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना प्रमन भैया ने कैसे बनाया, ऐसे बनाइए। फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंडरफुल। अब आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। अब हम हमारा लास्ट यानी कि तीसरा पोज करेंगे, जो है स्कूबा डाइवर पोज। इसके लिए पहले आप सब अपनी मैट पर पेट के बल से उल्टा लेट जाइए। धीरे धीरे, कभी योगा में जल्दबाजी नहीं करते। फिर अपने चेस्ट और शोल्डर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए और अपने दोनों हैंड्स को जॉइन कीजिए। यस, आप सब देख रहे हैं ना प्रमन भैया कैसे कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्कूबा डाइवर पोज। वेरी गुड। अब आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो आप सबको आज की तीनों पोज अच्छे लगे? यस यस ईशा दीदी, प्रमन मैं आपको सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सारे पोजेस बहुत अच्छे से, बहुत शांति से हमें एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू प्रमन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज पोजेस। और प्रमन अपनी योगा मैट जल्दी से ले लीजिए। प्रमन, दक्ष भैया आ रहे हैं। यस यस, आई कैन सी प्रमन रनिंग विथ हिज योगा मैट बिकॉज now he has to join Daksh Bhaiya for dance. Children, come on, the favorite section of this Small Wonders play date is on. We can see Daksh. Good morning, Daksh Bhaiya. हेलो, गुड मॉर्निंग। आपके डांस का, जैसे मीता दीदी का क्राफ्ट, मुस्कान दीदी की गेम्स, प्रमन का योगा एक्सरसाइज हम वेट करते हैं, वैसे आपके डांस के लिए भी हम लोग वेट करते ही रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये वी कैन सी रॉकी, लब्धी। यस यस यस, वंडरफुल। ओके, आज हम कितना स्टेप करेंगे? 5। ओके, तो फर्स्ट स्टेप
open your legs. And jagah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Swing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. अब next step. उसमें पाँव भी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. अब थर्ड स्टेप. इसमें सर्कल घूमना. ठीक है. अब हम सर्कल में घूमेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पहले राइट फिर लेफ्ट. चलो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. इनसे बोले अपने. अब हम करेंगे फिफ्थ स्टेप ना. ठीक है. बताया 4. ओके. तो हम करेंगे फोर्थ स्टेप. इसके लिए 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ओके. अब फिफ्थ स्टेप. इसके लिए 1, 2, 3, 4. पहले 1, 2, दो बार 3, 4. पहले 1, 2, 3, 4. ओके. 1, 2, 3, 4. तो कैसे लगे आपको 1 स्टेप्स? बहुत ही अच्छे लगे दक्ष भैया. थैंक यू सो मच. सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे हैं. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग विद अस एंड जॉइनिंग फॉर दिस डांस सेशन. थैंक यू दक्ष भैया. So now we have Muskan Didi. Muskan Didi, can you join us for the game? Yes. So just a minute, children. Muskan Didi is just setting up the table, her games, material and everything. So it's a beautiful game. मैं आपको बता रही हूँ कि ये गेम अगर आप प्रिपेयर करोगे और खेलोगे, you will definitely enjoy and you will thank Muskan Didi कि आपने कितनी अच्छी गेम डिजाइन की है. So is Muskan Didi ready? Perfect. Let's go into the classroom. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. काइट फेस्टिवल आ रहा है तो आज मैं आपके लिए काइट की एक अच्छी सी गेम लेकर आई हूँ जिसका नाम है काइट और मार्बल की गेम. मैं आप यहाँ पे लेकर आई हूँ. आप देख रहे हैं ये गेम आप घर पर भी इजीली ऐसे अच्छे से बना सकते हो. यहाँ पे मैंने पेपर प्लेट ली है और एक काइट लिया है छोटा सा. वो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिक कर दिया है. थर्मोकोल की प्लेट ली है और एक छोटा सा काइट लिया है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है और ऐसे बीच में मैंने ऐसे होल कर दिए हैं. ये गेम आप घर पर भी इजीली अच्छे से बना सकते हो और ये गेम खेलने में आपको बहुत ही मजा आएगा. ये गेम कैसे खेलनी है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें आप थोड़े से ऐसे मार्बल डालना है. मार्बल की वजह से आप ऐसे थोड़े कुछ बिट्स भी यूज कर सकते हो या फिर मार्बल भी यूज कर सकते हो. पर बच्चों को ये इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे ये मुंह में नहीं डालें. ये बात का पेरेंट्स आपको बहुत ध्यान रखना है. पहले हमें ये थोड़े मार्बल्स में सारे प्लेट में डालूंगी और फिर ये मार्बल्स हमें ये जो होल्स है उसमें हमें ये फिक्स करने हैं. 1 मिनट में सबसे ज्यादा जल्दी फिक्स हो जाएगा वो विनर होगा. ये गेम आप ऐसे इजीली अच्छे से खेल सकते हो और आपको ये गेम खेलने में बहुत ही मजा आएगा. देखो ये गेम मैं कैसे खेलती हूँ. देखो ये मार्बल हमें इसे होल में ऐसे अंदर फिक्स करने हैं. देखो ये जा रहे हैं ना 1 बाय 1 ऐसे. अरे वाह. देखो इसे 1 बाय 1 ऐसे जा रहे हैं. इसकी जगह पे आप बीट्स भी अंदर यूज कर सकते हो. अरे ये वाला 1 वाला तो फंस गया. ये जल्दी जाता ही नहीं मेरे से. चलो जल्दी जल्दी. अरे वाह. देखो ये मार्बल सारे अंदर फिक्स हो गए ना. आपको मजा आया ना. इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन और हमारा ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता है और इसकी एक्सरसाइज हमारी बहुत ही अच्छी होती है. ऐसे फिर से ऐसे वापस रिमूव करके फिर से हम लोग ये खेल सकते हैं. मार्बल की जगह पे आप ये बिट्स भी यूज कर सकते हो. देखो फिर से मैं आपको ये दिखाती हूँ.
इसमें हमें हॉल में ये फिक्स करने हैं। देखो, अरे 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 अरे, वाह वाह वाह, ये आप बच्चों को खेलने में बहुत ही मजा आएगा। देखो, हो गई ना फिक्स। ये गेम आप घर पे भी इजीली बनाना और खेलना, और मेरे को इसकी फोटोज जरूर भेजना। मजा आया आपको? वंडरफुल मुस्कान दीदी, थैंक यू सो मच। जैसे मुस्कान दीदी ने थोड़ा सेफ्टी मेजर्स बताया, ये मार्बल्स छोटे होते हैं साइज में, तो पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा जब बच्चे ये खेल रहे हैं कि वो मुंह में न डाल दें, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। दूसरा मैं ये बताऊंगी कि ये जो सारे मार्बल्स या बॉल्स या बीड्स जो भी आप यूज करते हो, वो देने से पहले आप वॉश करके दीजिएगा, और बच्चे जब खेल लें उसके बाद भी मेक श्योर कि ये वॉश होकर ही टॉय बास्केट में जाएं, बिकॉज इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि बच्चे जो चीजें सब लोग यूज करते हैं, टच करते हैं, उनको टच करके वो लोग इन्फेक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें जो वॉशेबल हैं वो वॉश करके ही दे, और फिर से उसको रीवॉश कर लीजिएगा। So now some health tips by Disha Didi. So let's go into the classroom. Disha Didi, are you ready? यस मैम। हेलो एवरीवन, आज मैं वापस आपको कुछ हेल्थ टिप्स बताती हूँ। अभी आपको पता है ना, कोरोना कितना फैल रहा है, तो उसमें आपको खुद को ही पॉसिबल है कि अपनी केयर रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। आपको जो खाने से पहले हैंड को अच्छे से रब करके वॉश करना है। आप बाहर प्ले करने जाते हो तो आते ही फर्स्ट आपको हैंड्स, लेग्स, फेस सब वॉश करना है। एवरी डे क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं। एवरी डे ब्रश करना है और अच्छे से वॉशिंग करनी है। यस, अभी आपको बीमार नहीं पड़ना है, हेल्दी रहना है, तो आपको डेली ये सारी चीज फॉलो करनी है। एवरी डे हेयर कोम करना है, हेयर में आपको ऑयल लगाना है। यस, और आपको हेल्दी फूड खाना है। यस, एवरी फ्राइडे, हम तो यहाँ पे स्मॉल वंडर्स में एवरी फ्राइडे नेल्स कट करवाते हैं चाइल्ड के, तो आपको भी रेगुलरली नेल्स को कट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें प्लीज अभी आप फॉलो कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दिशा दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्लेanलीनेस, सेल्फ केयर, बिकॉज यही सारी आदतें जो है वो हमारे साथ रहेंगी और हमें फिट एंड फाइन रखेंगी। सो नाउ दिस इज अ बाय बाय सॉन्ग एंड वील मीट अगेन ऑन नेक्स्ट Saturday. So enjoy this bye bye song. Bye bye children. Oh yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Bye bye children, see you, and please do take good care of yourselves, और उत्तरायण अगर मनाएं तो social distancing के साथ मनाएं। Bye bye, love you all children, bye.